Hello everyone and welcome back to another lecture of Power System 2 with AKTU code as KEE601. My name is Kitty Tripathi and I am Faculty of Electrical Engineering in Babu Banarsi Das Northern India Institute of Technology, Lucknow. So let's begin with today's lecture, which is study of load flow analysis. In previous lectures we have already discussed what load flow analysis basically is and what are the things which are prerequisite for studying load flow analysis. Let us go through a very short recap of this so that we can quickly jump into how do we do load flow analysis. Now, when we are talking about load flow study, what do you mean, what are we doing, trying to do here in load flow? तो लोड फ्लो में वी आर ट्राइंग टू से दैट वी डू अ स्टेडी स्टेट सोल्यूशन. ठीक है, स्टेडी स्टेट सोल्यूशन किसका? किसी पावर सिस्टम नेटवर्क का. फॉर व्हाट पर्पस? वी सिंपली आर ट्राइंग टू हैव अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कैलकुलेशंस इन अ स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, as simplified as what we have done in a single line diagram using per unit system. ठीक है. So what was the basic problem which occurred when we were trying to study what is the load flow equations in a steady state condition? तो basic problem ये थी कि हमारे पास set of non-linear equations मिल रहे थे और वो भी simultaneous equations. So we have n number of simultaneous non-linear equations. Now what is the problem with the non-linear equations? डायरेक्टली कन्वेंशनल मेथड से हम नॉन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को नहीं फाइंड आउट कर सकते. सो व्हाट इज द थिंग विच वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज any of the iterative methods we have studied in mathematics in previous years that we will be using here to simplify these n number of non-linear simultaneous equations. ठीक है. What are the fundamentals, methodology which we are going to use for solving these non-linear equations? So here in this syllabus of Power System 2, we will be using these three methods: Gauss-Seidel method, Newton-Raphson method and fast decoupled method for load flow analysis. Before jumping into what Gauss-Seidel method is, let us quickly get a reminder of how do we begin a load flow analysis. So just take a mental note. We have already discussed in the previous lecture कि जब भी हम लोड फ्लो में बसेस को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ बस है जो हम यूज़ कर रहे हैं. वन इज़ कॉल्ड एज स्लैक बस, सेकेंड इज़ कॉल्ड एज पीवी बस और जनरेटर बस एंड थर्ड इज़ कॉल्ड एज पीक्यू बस और लोड बस. इन 3 काइंड्स ऑफ बसेस को यूटिलाइज कर, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी हैं. अब हम करना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली इन 3 बसेस सिस्टम को, इन 3 काइंड ऑफ बसेस सिस्टम को यूटिलाइज कर नॉन लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन यूजिंग एनी ऑफ दीज 3 इटरेटिव मेथड्स we will be finding out the solutions of those equations. Okay, this is what is called as load flow analysis. For this, what will be the thing which is required to solve? The required is impedance matrix or admittance matrix. Normally we have discussed that we use admittance matrix. तो जो Y बस का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं इसके, उनको हम डायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशंस के लिए. So let us now begin what is Gauss-Seidel method. So first things first, what do we do in a Gauss-Seidel method? तो हम लोग क्या करते हैं? n number of non-linear equations, n number of non-linear simultaneous equations हैं ये सारी, non-linear equation का solution find out करने की कोशिश करते हैं. कौन कौन सी बसेस यूज करके? तो यहाँ पर 2 केसेस आ जाते हैं. केस नंबर 1, जब हमारे पास सिर्फ स्लैक बस हो और सिर्फ पीक्यू बस हो. स्लैक बस प्लस पीक्यू बस. ठीक है, हमारे पास पीवी बसेस नहीं है, या तो स्लैक बस है या पीक्यू बस है. और सेकंड कैटेगरी में हम डिस्कस करते हैं जब हमारे पास स्लैक बस भी है, पीक्यू बस भी है और पीवी बस भी है. तो हम 2 तरह के मेथडोलॉजीज को यहाँ 2 तरह के केसेस में एक्चुअली डिवाइड करेंगे और स्टडी करेंगे गॉस-सीडल मेथड को. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गॉस-सीडल मेथड को हम लोग सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं. क्यों?
ये क्विकली जैसे ही हम इनके स्टेप्स पे बढ़ेंगे, जब एल्गोरिदम्स पर आएंगे तो वी विल क्लियरली सी हाउ वी आर इन एवरी सेकेंड स्टेप डिस्प्लेसिंग द वैल्यूज विच वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। क्योंकि प्रीवियस स्टेप के वोल्टेजेस की वैल्यू जो ऑब्टेन हो रही है वो अगले स्टेप में इमीडिएटली यूज हो जाती है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, प्रीवियस फाइंडेड वैल्यू को, प्रीवियस फाउंड वैल्यू को अगले स्टेप में डिस्प्लेस कर दिया। दैट इज वाई, और हर एक स्टेप में ये काम होता चला जा रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑल्सो। what is the exact meaning of and how we can realize it, we will be seeing it in the upcoming slides, right? So let us begin with the Gauss Seidel method. तो Gauss Seidel method है क्या? सबसे पहली चीज़ ये एक iterative method है। iterative methods किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बेसिकली हम लोग करते क्या हैं यहाँ पर, तो वेक्टर या मैट्रिक्स फॉर्म में हम डेटा सेव करते हैं और उसके बाद उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो है उन वैल्यूज़ का इनिशियल सॉल्यूशन। जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं उनका इनिशियल सॉल्यूशन वेक्टर। सो गॉस सीडल मेथड कहता है वी हैव टू टेक अ गेस फॉर द इनिशियल सॉल्यूशन। गेस, अब गेस है तो कुछ भी रैंडम वैल्यूज रखें या ये किसी किन बातों पे डिपेंडेंट होता है, तो येस इट इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ द अदर केसेस लाइक choosing any value from the past experiences, or we can use any of the statistical method to determine this value, or it may be any of the practical condition, or simply we can use one per unit value as a initial guess, which we will be using here in the entire cases of when we will be studying Gauss Seidel method, right? Until and unless we have some specified values already, right? So हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके बाद हर एक नेक्स्ट इटरेशन में प्रीवियस इटरेशन के सॉल्यूशंस को अपडेट कर रहे हैं। ये काम, इसका मतलब है इटरेशन का मतलब हो गया लूप, मतलब इन्हें n नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करते ही चले जाना है। तो द क्वेश्चन इज कब तक सॉल्व करेंगे किसी नॉन लीनियर इक्वेशन को लूप में? एक बार वन सेट ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व, जैसे मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल्स 1 से लेकर n तक हैं, तो एक बार हमने 1 से लेकर n तक की सारी वैल्यूज डिटरमाइन की, दूसरी बार फिर की, तीसरी बार फिर की, कब तक करते चले जाएं काम? तो ये इटरेटिव मेथड्स तब तक सॉल्व किए जाते हैं जब तक ये कभी कन्वर्ज ना हो जाए या कन्वर्जेंस पॉइंट रीच ना हो जाए, तब तक सॉल्यूशंस को नेक्स्ट स्टेप में, हर सब्सीक्वेंट स्टेप में अपडेट किया जाता है। अब कब कन्वर्जेंस आएगा? जब हमारे पास कोई प्री स्पेसिफाइड फैक्टर हो जो दो स्टेप्स के बीच के डिफरेंसेस को डिटरमाइन या डिड्यूस कर रहे हो या इंडिकेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से वी हैव 10 to the power -2 एज अ कन्वर्जेंस फैक्टर, इसका मतलब हो गया हमारे पास मान लेते हैं 5 बस सिस्टम है, हमने बस नंबर 1 को स्लैक बस मान लिया, रेस्ट ऑफ द बसेस हमारे पास मान लेते हैं PQ बसेस हैं, ठीक है। तो जितने भी 2, 3, 4, 5 ये सारे PQ बसेस हैं, इन सारे बसेस के लिए अगर हम वोल्टेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, एक स्टेप में किया, फिर सेकेंड स्टेप में किया, फिर क्या करेंगे, सेकेंड और फर्स्ट स्टेप में इन सारी वैल्यूज़ का डिफरेंस देखेंगे। और अगर हर वोल्टेजेस में, जैसे बस नंबर 2 का वोल्टेज, 3 का वोल्टेज, 4 का वोल्टेज, 5 का वोल्टेज, सारे बसेस के वोल्टेजेस हर 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेप में के बीच में अगर सारी बसेस के डिफरेंस आता है 10 की पावर -2, जो हमारा कन्वर्जेंस फैक्टर है, तो हम कहेंगे कि solution is converged and we will consider it as the final solution. Then we will proceed to calculate the power of the slack bus. Okay? अगर ऐसा नहीं है तो हम ये कन्वर्जेंस करते चले जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स ये फॉर्म सॉल्व करते चले जाएंगे जब तक कि कन्वर्जेंस अचीव नहीं हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस क्विकली जंप इनटू, अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कोई n बस सिस्टम है, ठीक है। इस n बस सिस्टम में एक बस हम मान लेते हैं, यहाँ कोई PV बस नहीं है, केस नंबर 1 के लिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास सिर्फ PQ बसेस हैं और एक स्लैक बस है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ बसेस हैं, जिसमें से एक बस तो हमारी स्लैक बस हो गई, कितनी बची, n-1 बसेस। तो ये जितनी भी n-1 बसेस हैं, ये सारी की सारी PQ बसेस हैं, क्योंकि हम पहले ही कंसिडर कर रहे हैं PV बस नहीं है सिस्टम में। स्लैक को माइनस कर दिया तो n-1 PQ बसेस हो गई। अब करेंगे क्या इस n-1 PQ बसेस का, इनके लिए हम
इक्वेशंस निकालेंगे। तो कितने नंबर ऑफ, अब PQ बसेस में क्या चीज़ डिटरमाइन की जाती है, वोल्टेजेस एंड लोड एंगल। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हम लोग याद करें अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को, तो लोड फ्लो की स्टार्ट में ये बात बताई गई थी कि फॉर एवरी बस वी हैव 4 वैल्यूज, active power, reactive power, voltage and load angle, in which any two is always specified and other two we have to calculate. With the use of all these 4 values we can solve anything, whatever, any kind of situation whatever we face in load flow, right. So to determine the solution we already have 2 values, what we have to do is to determine the other 2 values, right. तो कितने number of equations बनेंगे, n बस सिस्टम में एक स्लैक हो गया, कितनी PV बस बची, सॉरी कितनी PQ बस बची, n-1. So we will be having n-1 equations in one go, right. These all n-1 equations are non-linear equations and we will be using iterative method to solve the values of this n-1 buses, right. इन n-1 buses के में हमारे पास क्या जानकारी है, हमारे पास एक्टिव और रिएक्टिव पावर नोन है क्योंकि वो PV बसेस हैं। अगर PV बस हैं तो PV पता है हमको, सॉरी PQ बसेस हैं तो PB पता है और Q भी पता है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन हाउ वी राइट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड हाउ आर वी गोइंग टू अपडेट दिस वैल्यू एंड व्हाट इज द डिजाइन प्रोसीजर, हाउ वी प्रोसीड टू द इटरेशन मेथड्स। सो लेट्स क्विकली सी दिस एक्सप्रेशन। मान लेते हैं हमारे पास कोई ith बस के लिए, हम n नंबर ऑफ बसेज है, किसी ith बस की बात करते हैं। तो किसी ith बस में अगर हम पावर की बात करें तो टोटल पावर क्या होता है, voltage into current conjugate. We have already studied in the unit 1, we write these kinds of expression, right. And Y conjugate we have already discussed in the previous lectures. So we have voltage into current conjugate. Now because when we talk about total power it is the sum of active and reactive power, so net power at ith bus can also be written as active power plus J times reactive power, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा अगर हम देखें और यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालें तो हम P प्लस जे क्यू डिवाइड बाई वी आई लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ईजिली राइट कर सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ करंट की वैल्यू यहाँ निकालनी हो, कॉन्जुगेट हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों साइड फिर कॉन्जुगेट ले लें। तो ith बस का करंट का कॉन्जुगेट फिर से लेने के बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ ith बस की करंट बचेगी। P प्लस जे क्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट P माइनस जे क्यू एंड वी आई का कॉन्जुगेट वी आई कॉन्जुगेट, राइट। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया करंट का, इफ वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, हम करंट को कभी भी लिखते हैं तो हम लोग एडमिटेंस के फॉर्म में लिखें तो y इंटू वी लिखते हैं, सिंपल है। y क्यों यूँ चूज कर रहे हैं, ये पावर सिस्टम्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि y बस इज अ स्पार्स बस, इट इज मच बेटर टू यूज y बस rather than z बस, so we have taken this convention of using y buses. We have already done the discussion of z and y bus and why do we prioritize y bus, right. so किसी भी करंट को एडमिटेंस के फॉर्म में लिखा जाए तो I सेट ऑफ करंट है, उसको y इंटू वी लिख सकते हैं, एडमिटेंस इंटू वोल्टेज। अगर यही हम n नंबर ऑफ सिस्टम्स के लिए करें तो समेशन में लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 से n, वी आई किसी भी kth बस के लिए लिख रहे हैं अगर तो वी आई के इंटू वी के, ठीक है। तो इस करंट के एक्सप्रेशन को हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। सी हियर वी हैव रीयूटिलाइज। अब पावर को क्या लिख रहे हैं हम, P माइनस आई इज P माइनस जे क्यू ओनली ना, तो P माइनस जे क्यू, ठीक है, डिवाइड बाई वी आई, ठीक है। तो व्हेन वी आर राइटिंग सिर्फ पावर P माइनस जे क्यू विच इज नेट पावर, तो हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज का कॉन्जुगेट इनटू करंट। तो वोल्टेज का कॉन्जुगेट n नंबर ऑफ बस सिस्टम के लिए वी आई कॉन्जुगेट हो गया, किसी ith बस के लिए लिख रहे हैं तभी तो हमने यहाँ पे पी आई और क्यू आई लिखा है, करेक्ट। सो हियर व्हाट आर वी डूइंग, ith बस में करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है दिस वैल्यू ओनली। सो द इक्वेशन विल बिकम y इंटू आई जे इफ वी आर टेकिंग इट एज j इज इक्वल टू 1 to n एंड वी जे, हियर व्हाट वी हैव रिटन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को समेशन के अंदर अगर लिख लें तो व्हाट डज एक्सप्रेशन बिकम्स, पावर का y आई जे इंटू वी जे इंटू वी आई कॉन्जुगेट, ठीक है। अभी हम वी आई की सिंपली बात करें, ith बस में वी वोल्टेज की बात करें
तो हम इस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/YII। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, वोल्टेजेस को समेशन, जैसे हम लोग समेशन और करंट अपॉन एडमिटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर ith बस की बात कर रहे हैं तो 1/YII। अब टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट माइनस हर इटरेशन में जो करंट है एक्सेप्ट फॉर ith बस के लिए जो हम यहाँ सेपरेट कर ले रहे हैं, तो वी कैन राइट इज एज I ऑफ I समेशन I इज, या यहाँ पर हम लोगों ने j लिखा ना, तो j इज इक्वल टू 1 से n। व्हाट कैन वी राइट हियर, दिस वैल्यू y ऑफ ij, बट रिमेंबर j इज नॉट इक्वल टू I, बिकॉज when j इज इक्वल टू I वो कंसिडरेशन हमने पहले ही कर लिया, माइनस करके अलग कर लिया उसको, तो इंटू v ऑफ j, ठीक है। ये हमको क्या मिल गई, वोल्टेज की इक्वेशन। दिस इज द एंटायर इक्वेशन विच वी विल बी यूजिंग फॉर डिटरमाइनिंग ऑल द वोल्टेजेस वैल्यू फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स इन द इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास रेफरेंस बस है जिसको स्लैक बस बोल रहे हैं, उसको बस नंबर 1 मान ले रहे हैं। फॉर सिंप्लीफिकेशन सारी स्लैक बसेस को नंबरिंग हम 1 कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें सीक्वेंस में दिखेगा ना फिर 2, 3, 4 एंड nth बस। तो मान लेते हैं अगर कोई 3 बस सिस्टम है, बस नंबर 1 स्लैक हो गई, तो हमें क्या निकालना है, बस नंबर 2 का वोल्टेज, बस नंबर 3 का वोल्टेज। तो अगर I की जगह 2 हो जाएगा तो व्हाट वी विल राइट, V2 इज इक्वल टू 1/I की जगह 2 है, बोथ इज I ओनली, तो 1/Y22 ब्रैकेट में इट विल बी। अब I को यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं P माइनस जे क्यू अपॉन वी आई, ये सेकेंड, ये जो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से दिख रही है, इस वैल्यू को हम यहाँ I ऑफ I में अगर रिप्लेस कर लें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P ऑफ I माइनस जे क्यू ऑफ I डिवाइडेड बाई, इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज किया है, वी आई स्टार दैट इज कॉन्जुगेट माइनस समेशन ऑफ 1 to n Y2j इंटू वी जे। अब मान लें अगर ये 3 बस सिस्टम है तो I इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 2 से 3 हो गया, स्लैक बस 1 से 3 हो गया, वी विल नॉट बी यूजिंग 2 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज 2 हियर, ठीक है। j नॉट इक्वल टू 2 3 बस सिस्टम के लिए, तो इसी इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। अब 3 के लिए यूज करना होगा, थर्ड बस के लिए, तो व्हाट विल बी द चेंज हियर, 1/Y33 P3 माइनस JQ3 अपॉन V3 स्टार माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 to 3, j नॉट इक्वल टू 3, Y3j इंटू Vj, एंड j will be changing from 1 to not 3 because for the third bus only we are calculating। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, जितने भी वोल्टेजेस के लिए इक्वेशन डेवलप होने चाहिए वो सारे इक्वेशंस हमको यहाँ मिल जाएंगे। सी व्हाट दिस इज व्हाट वी हैव रिटन इट हियर, सी व्हाट वी हैव डन, दिस इज व्हाट वी वर टेलिंग कि अगर हमारे पास पावर है, जो वोल्टेज, पावर का कॉन्जुगेट अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो वोल्टेज इंटू करंट, करंट को हम लोग समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 से n YIj इंटू Vj लिख दिया। अब पावर P प्लस जे क्यू होता है, कॉन्जुगेट लेंगे तो P माइनस जे क्यू हो जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा जो टर्म है ये करंट का वैल्यू है, ठीक है। अब पावर को हम लोग अगर P माइनस जे क्यू लिखें, ये करंट की वैल्यू है, तो पावर अपॉन वोल्टेज ही तो करंट होता है, और कॉन्जुगेट है तो पावर को हम लोग PI माइनस जे क्यू आई लिख सकते हैं, डिवाइड बाई वोल्टेज में, बिकॉज इट इज कॉन्जुगेट हियर, यहाँ वी विल राइट VI का कॉन्जुगेट, ये ith बस के लिए कर रहे हैं, इज इक्वल टू करंट ऑफ ith बस। अब करंट का ही एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने समीशन की वैल्यू पढ़ी है, वही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। सो दिस वैल्यू कैन बी यूटिलाइज इन टर्म्स ऑफ करंट। अब हम लोग कर क्या रहे, राइट साइड ये वैल्यू है, लेफ्ट साइड ये वैल्यू है। अब लेफ्ट साइड में व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि हम I इज इक्वल टू j जब सेम हो जाए, दोनों हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, अगर y बाय एडमिटेंस बस की बात कर रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट अलग कर लेते हैं, बाकी समेशन के फैक्टर में अलग रख लेते हैं, मतलब व्हेन j इज इक्वल टू I सेपरेट दैट वैल्यू। इस एक्सप्रेशन में जब j इज इक्वल टू I होगा तो क्या हो जाएगा, YII और VI, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन, YII इंटू VI प्लस समेशन ऑफ the entire matrix as it is, but it is not equal to I because we have considered already, ठीक है। अब यहाँ से what are we trying to deduce, हमको YII चाहिए, ठीक है। ये वाला पूरा टर्म
इक्वेशन में इस पार ले जाएं तो व्हाट वी विल राइट पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइडेड बाई वी आई स्टार माइनस summation of j is equal to 1 to n, j is not equal to I because we have already used that value, y of ij into vj. ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया yi into vi. अब यहाँ से ही सिंपली अगर vi का एक्सप्रेशन लेना चाहें तो 1 अपॉन yi कर दें डिवाइड में, तो ये पूरा डिवाइड हो गया 1 अपॉन yi p of I minus j q of I upon vi conjugate minus summation of j is equal to 1 से n, j not equal to I, y I j into v j. यही हमारी nth बस के लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और इसी को यूटिलाइज करते हैं. दिस इज द ओनली वैल्यू विच वी आर ट्राइंग टू यूज. नाउ व्हाट अबाउट द लोड एंगल डेल. तो हम लोग लोड एंगल के लिए एंगल है, ठीक है, उसके लिए हम लोग व्हाट कैन वी यूज, वोल्टेजेस हम यहाँ पर साइन और कॉस के टर्म्स में अगर हम पोलर या रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन करना चाहें तो वो यूटिलाइज करके निकाल सकते हैं वैल्यू लोड एंगल्स की बहुत आराम से. हमारे पास वोल्टेजेस पता है तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन पता है, अगर हम इसको पोलर फॉर्मेट में लिख दें तो वी विल बी एबल टू डिटरमाइन दी एंगल एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू. सवाल ये उठता है कि ये कब तक सॉल्व करें, तो जब तक कि कन्वर्जेंस अचीव नहीं हो जाता. इन जनरल कन्वर्जेंस का रेंज जो रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -3 समवेयर इन बिटवीन. ठीक है, दिस इज द मेजर इशू हियर. नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि एल्गोरिथम क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो व्हेन वी हैव टू सॉल्व एनी सेट ऑफ कंडीशंस फॉर अ गॉस-सीडल मेथड. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमारे पास जो भी गिवन कंडीशंस हैं उसमें हम डेटा को, जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको एक साथ टैबुलेट कर लें. ठीक है, इसका मतलब है सारी वैल्यूज़ हम मेंशन कर लें. नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, एडमिटेंस बस की वैल्यू को डिटरमाइन करना. हम लोगों ने पहले ही सीखा है कि कैसे हम इंस्पेक्ट करके एडमिटेंस बस को निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे. उसके बाद जो स्लैक बस है उसका तो वैल्यू गिवन होता है, अगर नहीं गिवन है ऑब्वियसली तो 1 पर यूनिट ले रहे हैं, बट वाई इट विल नॉट बी गिवन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम लोड फ्लो में स्लैक बसेस का वोल्टेज और लोड एंगल ऑलरेडी डिफाइन करते हैं, तभी तो स्लैक बस कह रहे हैं उसको, तभी तो रेफरेंस बस कह रहे हैं. ठीक है, रेफरेंस बस का वोल्टेज गिवन है. मान लेते हैं अगर किसी और बस का वोल्टेज नहीं पता है तो इनिशियल गेस तो हमें लेना है शुरू करने के लिए, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन में देखा था सब वी आई स्टार बन रहा है, तो हम 1 2 3 वैल्यू रखनी तो पड़ेगी हर बस की. तो कैसे रखेंगे, तो उसके लिए इनिशियल गेस लिया जाता है और वी यूज द वैल्यू समवॉट 1 पर यूनिट इफ इट इज नॉट ऑलरेडी मेंशन. दिस सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ दिस 1 पर यूनिट वैल्यू इज कॉल्ड एज फ्लैट स्टार्ट सॉल्यूशन फॉर अ लोड फ्लो. अब हम क्या करते हैं, पहले इटरेशन के लिए सॉल्व किया, पहले इटरेशन के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस बस मान लेते हैं 1 है, तो 2 3 4 5 6 7 जितनी भी बसेस होंगी सबके लिए हम लोग वोल्टेज निकालेंगे. ठीक है, इसमें जो प्रीवियस वैल्यूज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम वही वैल्यूज लिख रहे हैं जो इनिशियल गेस थी. ये फर्स्ट इटरेशन हो गया. अब सेकेंड इटरेशन पे जाएंगे तो मान लेते हैं हम यहाँ पर हम लोगों ने पहले इटरेशन में V2 की वैल्यू निकाली. ठीक है, पहले ही इटरेशन में जब हम V3 की वैल्यू निकालेंगे तो पहले इटरेशन में यहाँ पर जितनी भी वैल्यू ऑलरेडी नोन है यानी इनिशियल गेस है V3 और उसके लेटर ऑन, वो तो यूज़ करेंगे. स्लैक बस यूज़ होता है वो भी यूज़ करेंगे. बस V2 में जो इनिशियल गेस है उसको ना यूज़ कर हमने क्या यूज़ कर लिया, जो इससे ठीक पहले वाले मेथड में V2 निकाला गया था. इसी को कह रहे हैं हम सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड, कि अभी ठीक एक स्टेप पहले ही निकाले थे, V2 की वैल्यू यहाँ यूज़ कर लेंगे. ठीक है, अब मान लेंगे V4 निकालना है तो V1 की वैल्यू तो फिक्स ही है, स्लैक बस है. V2 में जो अभी पिछले इसी इटरेशन में पिछले स्टेप में निकाला था वो यूज़ करेंगे. V3 भी अगर V4 निकाल रहे हैं तो पिछले स्टेप में निकल चुका होगा, V3 भी यूज़ करेंगे. V4 और उसके बाद की वैल्यू नहीं निकली है तो ये इनिशियल गेस वाली वैल्यू यूज़ करेंगे. और ऐसा करते करते सक्सेसफुली हम अप्रॉक्सीमेट करते करते एक इटरेशन कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद यही nth नंबर ऑफ टाइम से करते चले जाएंगे जब तक हमको कन्वर्जेंस नहीं मिल जाता. कन्वर्जेंस का मतलब मान लो सेकेंड बस के लिए कर रहे हैं तो V2 थर्ड
इटरेशन माइनस सेकेंड इटरेशन मान लेते हैं, थर्ड इटरेशन पर आए। अगर ये डिफरेंस हमारा, इसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस अगर हमारा जो एप्सिलॉन या गिवन परमिसिबल वैल्यू है कि जितना डिफरेंस हमें एक्सेप्टेड है, जिसको हम कन्वर्जेंस फैक्टर बोल रहे हैं, उसके से लेस देन होता है सारे वोल्टेजेस की वैल्यू, देन वी कंसिडर इट एज converged, and at that point of time we calculate all the powers in the system. We also can determine all the losses. ठीक है। अब लास्ट केस, लास्ट सिचुएशन है कि अगर हमारे पास पीवी बस भी हो तब क्या करेंगे हम। पीवी बस भी सिस्टम में है तो पीवी बसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पीवी हम मान लेते हैं हमारे पास m नंबर ऑफ पीवी बसेस हैं, तो हमारे पास कितनी गिवन वैल्यू है स्लैक बस के लिए वोल्टेज और उसका लोड एंगल। ठीक है। अब n नंबर ऑफ पी, मान लेते हैं m नंबर ऑफ PQ बसेस हैं। ठीक है, तो P2 Q2 पता है, P3 Q3 पता है, सो एंड सो ऑन Pn Qn पता है। ठीक है, m नंबर ऑफ बसेस है तो ठीक है। अब इतने तो PQ बस थे, अब बच गया जो PV बस है, कितना बच गया n माइनस m। तो इसके बाद हम कह सकते हैं Qm+1, क्योंकि नेक्स्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो Q नहीं P और V, बिकॉज ऑलरेडी PQ यूज हो चुका है, तो Pm+1 और Vm+1, फिर Pm+2 Vm+2 करते करते Pn और Vn। इतनी जानकारी हमारे पास है। जो जानकारी नहीं है वो कैलकुलेट की जाएगी। कैसे? पावर की इक्वेशन V इंटू आई कॉन्जुगेट हम लोग यूज करते हैं, तो Vi स्टार इंटू समेशन Yi k इज इक्वल टू 1 to n इंटू Vk, इसको यूज कर लेंगे SI पावर निकालने के लिए। अब क्योंकि हमें Q निकालना है, PV बसेस हैं, PQ बसेस के लिए तो वोल्टेज निकालना है, वही प्रोसीजर है जो पहले था, सिर्फ एक फैक्टर यहाँ बढ़ गया है, वो है Q निकालने का। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट देखें तो Q मिल जाएगा, तो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। Vi स्टार समेशन k इज इक्वल टू 1 to n Yik इंटू Vk, एंड हेंस वी ऑब्टेन द वैल्यू। अब इसको भी हम इटरेटिवली सॉल्व करते जाते हैं जब तक हमारी कन्वर्जेंस ना आ जाए। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ इस मेथड में कि कन्वर्ज हो नहीं पाता है, कभी कभी बहुत लार्जर नंबर ऑफ टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। उस केस में हम बोलते हैं कि इक्वेशन को हम लोगों ने एक्सेलरेट कर दिया है। तो हाउ डू? वी मल्टीप्लाई द डिफरेंस in the two consecutive iterations with a factor called as acceleration factor. This is doing what? It is accelerating the values so that हमको जो convergence है वो थोड़ा जल्दी मिल पाए। ठीक है, that is why we write it as this term. अब इस acceleration की अगर वैल्यू की बात करें तो रफली ये 0.6 से 0.8 के बीच आपको जनरल केसेस में मिलेगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम और है कि जब हम Q निकाल रहे थे रिएक्टिव पावर, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मिनिमा और मैक्सिमा के Q की जो रेंज होती है वो वॉयलेट नहीं होनी चाहिए किसी भी सिस्टम के लिए। अगर मिनिमम वैल्यू वॉयलेट होती है देन वी यूज Q एज अ Q मिनिमम वैल्यू ओनली। इफ मैक्सिमम वैल्यू इज गेटिंग वॉयलेटेड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, देन वी यूज द वैल्यू एज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एंड हियर वी कैन सी दी फ्लो चार्ट। जो स्टेप्स मैंने बोला है कि हम पहले डेटा एनालिसिस करेंगे, वाई बस निकालेंगे, सारे पैरामीटर्स से हम इटरेशन काउंट स्टार्ट करेंगे। इटरेशन काउंट में हम फिर यहाँ पर p इक्वल टू 1 पे हमने वो सेट कर दिया है कि कन्वर्जेंस फैक्टर कितना होना चाहिए। चेक करेंगे बस हमारी PV है या PQ है। अगर PV बस है तो लोड एंगल और वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम लिमिट। अगर PQ बस Q निकाल रहे हैं, अगर Q का मैक्सिमम मिनिमा वॉयलेट तो नहीं कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है तो वॉयलेटेड वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, चेंज इन दी वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बैलेंस करने के लिए और बस का काउंट बढ़ा देंगे। ये करते 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 जब तक हमारा पूरा सारी बसेस के लिए वैल्यू नहीं हो जाती, इटरेशन हम एडवांस करते चले जाएंगे। इस लूप से आपको देख रहा हूँ इटरेशन हमने एक नेक्स्ट एडवांस किया। कब तक करते चले जाते हैं? जब तक हमें कन्वर्जेंस नहीं मिल जाता। अगर कन्वर्जेंस मिल गया तो वहीं पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करके स्टॉप कर दिया जाता है। टू सम अप विद इन थिंग्स, we sum up that advantages of the Gauss-Seidel method is it is very simple, it takes less effort in programming, it gives less memory storage, it is very useful for small systems. प्रॉब्लम क्या है सिस्टम के साथ? बहुत नंबर ऑफ इटरेशंस लगते हैं,
कन्वर्जेंस आसानी से नहीं आता है, तो लार्ज सिस्टम्स के लिए ये सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर द गॉस सीडल मेथड। थैंक यू वेरी मच।